Besides the different evaluation protocols you have available, one last thing you should know about is the use of common sense baselines. Training a deep learning model is a bit like pressing a button that launches a rocket in parallel world. You can't hear it or see it. You can't observe the manifold learning process. It's happening in a space with thousands of dimensions. And even if you projected it to 3D, you couldn't interpret it. The only feedback you have in is your validation matrix, like an altitude meter on your invisible rocket. अब दरअसल बात जो है ना वो हाईली डेंसली फीचर स्पेस जो आपकी जो है कि बहुत ज्यादा 1000 डायमेंशंस हैं, उसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2D में आप विजुअलाइज करते हैं, 3D में बमुश्किल आप विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप उसको नहीं देख सकते। तो ठीक है, और हमारे पास तरीका क्या है कि जो एक इनविजिबल चीज को विजुअलाइज करने का जो तरीका है वो हमारे पास जो है बेसलाइन एक रेफरेंस हम कर लेते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं कि जी मिनिमम जो है ना ये है एक हद, ठीक है, उसको जो है हमने बीट करना है। In particularly important to be able to tell whether you are getting off the ground at all. What was the altitude where you started at? Your model seems to have an accuracy of 15%. Is that any good? Before you start working with the dataset, you should always pick a trivial baseline that you will try to beat. If you cross that threshold, you will know you are doing something right. Your model is actually using the information in the input data to make predictions that generalize and you can keep going. The baseline could be the performance of a random classifier or the performance of the simplest non-machine learning technique you can imagine. आपने देखा था कि जैसे कि हम एक रैंडम नंबर्स लेके उसको हम क्लासिफाई कर रहे थे, ठीक है, तो उसकी मतलब क्या आ रही थी एक्यूरेसी, तो यानी कि एक बेस लाइन हम उसको सेट कर रहे थे, बेस लाइन मिसाल है 20% एक्यूरेसी आ रही है, 18% आ रही है, तो 18% को अगर आप बीट कर सकते हैं तो दैट मीन्स आपका मॉडल हम कह सकते हैं जी हाँ जी सही चलना शुरू हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप जो है वो एक कॉमन बेस लाइन जो आपकी एक्यूरेसी दे रही है उसको बीट करना है। For instance, in the MNS digit classification example, a simple baseline would be validation accuracy greater than 0.1 random classifier. आपके जो रैंडम क्लासिफायर है उसकी एक्यूरेसी है 10%, ठीक है, तो अब आपकी जो 10% से ज्यादा होगा आपका मॉडल, अगर आपका मॉडल जो ट्रेन हुआ है उसकी एक्यूरेसी अगर 10% से ज्यादा है, दैट मीन्स उसने रैंडम क्लासिफायर को बीट किया या बेस लाइन को बीट किया। इन द IMDP एग्जांपल इट वुड बी अ वैलिडेशन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 0.5. In the Reuters example, it would be around 18%, 19% due to class imbalance. If you have a binary classification problem where 90% of sample belong to class A and 10% belong to class B, then a classifier that always predicts A already achieved 90% in validation accuracy, and you will need to do better than that. तो ये सारे एक बेस लाइन की उसने एग्जांपल्स दी हैं, एक जैसे कि एक रैंडम अप्रोच है या एक यानी कि जैसे कि आपके पास अगर आप इसको अगर वैलिडेशन एक्यूरेसी है, मेरे ना शायद कोई पावर में प्रॉब्लम आ रहा है, जरा एक मिनट होल्ड। जैसा कि एक बेस लाइन जो है हम सिलेक्ट करते हैं, क्या बेस लाइन जो है उसको बीट करना जरूरी होता है। अगर आप बेस लाइन को बीट नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका मॉडल जो है ना किसी सूरत भी जो है ना वो वैलिडेशन के ऊपर आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, या आपके जो है ना टेस्ट डेटा के ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आ सकती। अगर आप
कम अज कम जो है एक बेस लाइन को आप क्रॉस नहीं करते, ठीक है। Having a common sense baseline you can refer to is essential when you are getting started on a problem no one has solved before, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आपने जो पहले कभी नहीं सॉल्व किया गया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक बेसलाइन सेट करें उसके लिए। If you can't beat a trivial solution, your model is worthless, ठीक है। Perhaps you are using a wrong model, or perhaps the problem you are looking tackling can't even be approached with machine learning in the first place. Time to go back to the drawing board, ठीक है। तो दैट मीन्स आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग से सॉल्व होने वाला ही नहीं है, अगर आप बेस लाइन एक्यूरेसीज को यानी कि बीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेस लाइन का पता कैसे चलेगा कि हम सेलेक्ट बेस लाइन कैसे करेंगे, ठीक है। बेस लाइन का अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट बेस लाइन्स होंगी, ठीक है। फर्ज किया आपके पास यहाँ एमएनएस के अंदर 10 क्लासेस थी, ठीक है। तो इसका जो बेस लाइन है उसने 10% रखा है। दैट मीन्स कि उसकी एक्यूरेसी कम से कम जो है वो 10% आनी चाहिए, 10% से ज्यादा आनी 10% से ज्यादा आनी चाहिए, 10% से कम नहीं हो सकती। अगर 10% से कम है तो दैट मीन्स आपका मॉडल चल ही नहीं रहा, आप ये पॉसिबल ही नहीं है आप इसको जो है ना इस मॉडल से ट्रेन करें, या ये प्रॉब्लम जो है सॉल्वेबल है भी या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये मिसाल के तौर पे एक बात करें इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन की, जैसे कि ये है, if you have a binary classification problem where 90% sample belong to class A and only 10% belong to B, तो आप जब ट्रेन करवाएंगे तो आपका मॉडल क्या लर्न करेगा, आपका मॉडल ये लर्न करेगा कि 100 में से 90 जो एग्जांपल्स हैं वो क्लास ए की हैं और 10 एग्जांपल जो है क्लास बी की हैं। दैट मीन्स अब इसका जो बेस लाइन है वो ये 90% है। अगर तो आपका जो एक्यूरेसी है, ठीक है, दिस एक्यूरेसी जो है दिस प्लस दिस एक्यूरेसी, ठीक है, यानी कि बी और ए दोनों की एक्यूरेसी मिला के 90 को टच कर गई है, ठीक है, तो उसके फिर तो ठीक है। अगर ये इसको भी नहीं टच कर सकी तो ये बेस लाइन बन जाती है, अगर इसको भी नहीं टच कर सकी तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं मतलब काम नहीं कर रहा सही से। Things to keep in mind about model evaluation: keep an eye out for the following when you are choosing an evaluation protocol: data representation, the arrow of time, redundancy in your data. इसका क्या मतलब है जी? डेटा रिप्रेजेंटेशन, you want both your training set and test set to be representative of your data at hand. आपका ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट दोनों ही एक मतलब उससे होने चाहिए, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से होने चाहिए। जो आपकी यानी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनका जो कि मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और की चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर इंस्टांस, इफ यू आर ट्राइंग टू क्लासिफाई images of digits and you are starting from an array of samples where the samples are ordered by their class, taking the first 80% of the array as your training set and the remaining 20% as test will result in your training set containing the classes 0 to 7. अगर आपका डेटा सेट अगर आपके पास एमएनएस डिजिट्स हैं, ठीक है, एमएनएस डिजिट्स की वो इमेजेस हैं वो, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो क्या है कि पहले क्लास 0 आ रही है, फिर क्लास 1 आ रही है, नहीं 0 वाले पहले आ रहे हैं, 1 2 3 4 आखिर में जो है 9 आ रहा है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर 80% डाटा आप ट्रेनिंग के लिए ले लेते हैं उसी ऑर्डर में, तो क्या होगा 0 से लेके 7 तक आप ले चुके होंगे ट्रेनिंग के लिए, और आगे जो है ना 8 9 जो है वो आपका टेस्टिंग के लिए आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपने तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है क्लासेस की वो की ही नहीं है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन का। तो ये एक जो है आपकी डाटा रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होगी, ठीक है। Where your test set will contain only classes 8 to 9, this seems like a ridiculous mistake, but it is surprisingly common. Okay? For this reason, you usually should randomly shuffle your data before
splitting into training and test sets. The arrow of time. If you are trying to predict the future given the past, for example, tomorrow's weather, stock movements and so on. अगर आपके पास पास्ट का डेटा है और आप फ्यूचर के स्टॉक या उसकी वेदर और उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, यू शुड नॉट रैंडमली शफल योर डेटा बिफोर स्प्लिटिंग इट. अगर आप एक टाइम सीरीज को शफल कर देंगे, दैट मीन्स काम ही सारा खराब हो गया, क्योंकि उसकी तो डिपेंडेंस है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस करती है कि हिस्ट्री क्या है, तो फिर हिस्ट्री के बेस के ऊपर हम अगली वैल्यू को प्रेडिक्शन करते हैं. अगर हिस्ट्री खराब है तो दैट मीन्स ये सारे का सारा मामला ही गड़बड़ हो गया. अगर हिस्ट्री शफल हो गई है, अगर हिस्ट्री का डाटा फ्यूचर में आ गया और फ्यूचर का डाटा हिस्ट्री में चला गया है, तो वो जो है आप उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सही तरीके से. ठीक है. Because doing क्या you should not randomly shuffle your data before splitting it, because doing so will create a temporal leak. Your model will effectively be trained on a data from the future. In such situations, you should always make sure all data in your test set is posterior to the data in the training set. आपके पास लाज़मी बात है एक जो फ्यूचर का डेटा है, यानी कि आपने ट्रेनिंग करनी है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, ठीक है, और प्रेडिक्शन करनी है आपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर. ठीक है. तो दैट मीन्स आपका जो ट्रेनिंग का डेटा है वो आपके फ्यूचर में एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि आप उसको शफल कर दें. तो शफल करेंगे क्या होगा, फ्यूचर का डेटा चला जाएगा पास्ट में और पास्ट का डेटा आ जाएगा फ्यूचर में. इसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल लीक कहते हैं. Redundancy in your data. If some data points in your data appear twice, fairly common with the real world data, then shuffling the data and splitting it into the training set and the validation set will result in redundancy between the training and the validation set. अच्छा, ये क्या हो गया, अगर आपके डेटा पॉइंट्स हैं रिपीट हो गए हैं, अगर आपके पास उसमें डेटा में एक ही रीडिंग जो है वो रिपीट हो गई है, अगर आप उसको शफल कर दें और उसको ट्रेनिंग और वैलिडेशन में स्प्लिट कर दें, तो आपका क्या होगा, विल रिजल्ट इन रिडंडेंसी बिटवीन द ट्रेनिंग डेटा एंड द वैलिडेशन. क्योंकि आपका हो सकता है कि वही जो एक रो की 2 कॉपीज थी या 3 या 4 कॉपीज थी, एक ही रो थी, सेम रो थी, उनको जब आपने शफल किया सारे डाटा को और उसके बाद वैलिडेशन और टेस्ट में कन्वर्ट किया, तो क्या होगा, हो सकता है कुछ डेटा जो है उस रोज का ट्रेनिंग में आ जाए और उसी रोज का कुछ इंस्टांसेस जो हैं वो टेस्टिंग में आ जाएं या वैलिडेशन में आ जाएं. तो वो जो है क्या होगा, वो आपका डेटा रिडंडेंट हो गया, ठीक है, रिपीटेड हो गया. ठीक है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन में. तो क्या होगा कि in effect you will be testing on part of training data, which is worst thing you can do. अब क्या है कि क्योंकि डेटा रिपीटेड था, कुछ डेटा आपका ट्रेनिंग में रह गया, कुछ टेस्टिंग में रह गया, तो क्या होगा, असल में आप क्या कर रहे हैं, जो डेटा ऑलरेडी टेस्टिंग में मौजूद है उसी डाटा के ऊपर आप ट्रेनिंग में उसकी ट्रेनिंग करवाए जा रहे हैं. ठीक है, हालांकि वो ऑलरेडी टेस्टिंग में मौजूद है, ट्रेनिंग में मौजूद है. ठीक है, तो ये जो है ये डिजास्टर है. Make sure your training set and validation sets are disjoint, यानी कि उसके अंदर कोई repetition नहीं है, ये disjoints हैं. Having reliable way to evaluate the performance of your model is how you will be able to monitor the tension at the heart of machine learning between optimization and generalization, underfitting and overfitting. आपकी जो optimization है ये relate करती है किससे, underfitting से. आपने क्या करना है कि आपने जो मशीन लर्निंग का जो आपका वो है कोर है, जो हार्ट है उसका, आपने बैलेंस फाइंड करना है ऑप्टिमाइजेशन और जनरलाइजेशन के बीच में, अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग के बीच में. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा लर्निंग ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो पैटर्न्स को लर्न न कर ले और जनरलाइजेशन को बिल्कुल भूल जाए. ठीक है, लेकिन हमने इन दोनों के बीच में, इन दोनों असल में यहाँ ये रिलेट कर रहा है इससे, ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो ओवरफिटिंग से रिलेट कर रहा है, और ये जो है जनरलाइजेशन जो है, अगर जनरलाइजेशन ज़्यादा हो जाए तो वो अंडरफिटिंग का केस हो जाएगा. अगर आपके
वैलिडेशन का जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा चल रही है इन द बिगिनिंग, तो वो आपका अंडर फिटिंग का केस हो जाएगा। तो हमने बैलेंस फाइंड करना है इन सिनेरियोज के बीच में। Improving the model fit, to achieve the perfect fit, you must first overfit, since you don't know the in advance where the boundary lies. तो सबसे पहले हमने जब मॉडल को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है तो हम उसको ओवरफिट खुद से ओवरफिट कराएंगे, ठीक है। तो ओवरफिट कराएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से जो है मॉडल इस जगह से खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है। यू मस्ट क्रॉस इट टू फाइंड इट। पहले हम क्या है कि उसको हम आपके जो वो जो ओवरफिटिंग का जो खतरा है उस रिस्क को हमने क्रॉस करना है पहले। जब हम उस रिस्क को क्रॉस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ओवरफिटिंग कहाँ हो रही है, कहाँ अक्कर हो रही है। Thus, your initial goal is to, as you start working on a problem, is to achieve a model that shows some generalization power and that is able to overfit, ठीक है। ओवरफिट हमें दिखना चाहिए पहले मॉडल। जब ओवरफिट हमें नजर आएगा तो फिर हम उसके अंदर इंप्रूव करेंगे। Once you have such model, you will focus on refining the generalization by fighting the overfitting. There are 3 common problems you will encounter in this stage. Training does not get started. Your training loss does not go down over time. Training gets started just fine, but your model does not meaningfully generalize. You can't beat the common sense baseline yet, ठीक है। आपके जो है कॉमन, यानी कि आपने मॉडल तो स्टार्ट हो गया है लेकिन आपने इतनी भी एक्यूरेसी नहीं दिखाई मॉडल ने कि वो कम से कम बेस लाइन को ही क्रॉस कर दे, ठीक है। बेस लाइन को क्रॉस करना जरूरी है। ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस बोथ गो डाउन ओवर टाइम and you can beat your baseline, but you don't seem to be able to overfit, which indicates you are still underfitting. आपकी ट्रेनिंग और वैलिडेशन जब इकट्ठी जा रही हो, ऊपर जा रही हो इकट्ठी या नीचे जा रही हो इकट्ठी, तो वो आपका अंडरफिटिंग का केस है। Let's see how you can address these issues to achieve the first big milestone of a machine learning project, getting the model that has some generalization power. It can beat that baseline, trivial baseline, and that is able to overfit, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो है एक मॉडल ऐसा ट्रेन कराएंगे जिसके अंदर थोड़ी बहुत जनरलाइजेशन भी हो, यानी कि आपके जो वैलिडेशन के ऊपर है उसकी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो ओवरफिट भी करे, ठीक है। तो ओवरफिट का मतलब आपको पता ही है कि वो ऐसे जो कर्व जा रही होती है वो ट्रेनिंग की जो है वो ऊपर जा रही होती है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो टेस्टिंग या वैलिडेशन है उसकी कर्व जो है वो नीचे डाइविएट करना शुरू करती है नीचे की तरफ। ट्यूनिंग द ग्रेडियंट डिसेंट पैरामीटर। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये इसका है, ठीक है, इम्प्रूविंग द मॉडल फिट। ये अब नया टॉपिक आपका है, फिटिंग को इम्प्रूव करें। Sometimes training does not get started as it stalls too early. Your loss is stuck. This is always something you can overcome. Remember that you can fit a model to random data. Even if nothing about your problem makes sense, you should still be able to train something, if only by memorizing the training data. तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या है कि जैसे ही आपका मॉडल स्टार्ट हुआ, लेकिन समटाइम्स जो है आपका मॉडल स्टार्ट नहीं होता, तो क्या होगा, आपका लॉस फंक्शन जो है वो न बढ़ रहा है न कम हो रहा है, स्टक हो गया है, ठीक है। जैसे मिसाल है लर्निंग रेट बहुत कम होता है तो वो आपका ग्रेडियंट जो है ना वो स्टक हो जाता है एक जगह पे, आगे चलता नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको हम ओवरकम कैसे करते हैं। रिमेंबर दैट यू कैन फिट अ मॉडल टू रैंडम डेटा, even if nothing about your problem makes sense. You should still be able to train something, if only by memorizing the training data. When this happens, it's always a problem with the configuration of the gradient descent process. Your choice of optimizer, the distribution of initial values in the weights of your model, learning rate, etc. तो आप इन सारी चीजों को जो है आपके ग्रेडियंट पैरामीटर को जो है चेंज करके जो है आप उसको वो कर सकते हैं कंट्रोल।
तो आपके पास कौन से पैरामीटर हैं? वेट्स हैं, लर्निंग रेट है, बैच साइज है, ठीक है, और ऑप्टिमाइजर की चॉइस है, ऑप्टिमाइजर कौन सा रखना है, एंड एटसेट्रा. All these parameters are independent, and as such it is usually sufficient to tune the learning rate and the batch size. मतलब आपका ज्यादातर जो है काम किससे हो सकता है? सीधा काम कैसे लर्निंग रेट को ट्यून कर लें और बैच साइज को ट्यून कर लें while keeping the rest of the parameters constant. तो आपके पास कितने पैरामीटर हो गए? एक ऑप्टिमाइजर हो गया, ठीक है, और दूसरा आपके पास वेट्स हो गए, लर्निंग रेट हो गया, बैच साइज हो गया. इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है? इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक लर्निंग रेट बैच साइज और दूसरा बैच साइज, ठीक है. लर्निंग रेट और बैच साइज को आप चेंज कर लें, बाकी चीजों को आपने कांस्टेंट रख लें. लर्निंग रेट और बैच साइज को चेंज करेंगे तो आपके मॉडल की जो है कर्व है, फिटिंग है, वो आपकी बेहतर हो जाएगी और आपका ओवर फिट नहीं करेगा, ठीक है. तो आपके पास ये वही आ गया, इसमें आपके सिक्वेंशियल लग गया और ऑप्टिमाइजर लग गया. लॉस फंक्शन जो है वो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इमेज मॉडल के लिए कर रहे हैं. तो ये स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कहाँ यूज होती है? किसी को पता है? अभी हमने पिछले 1-2 दिन में ये पढ़ा है, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा ये जी कहीं सर. ऑर्डिनल या कैटेगोरिकल फीचर के साथ इसका लिंक है. जी 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 जी. वो आपके जो फीचर्स है ना, वो आप कैटेगोरिकल फीचर्स ले लेते हैं, बाइनरी हाँ वन हॉट एनकोड नहीं करते. सर. वो सब हीट मैप वाला वो तो नहीं इसमें आता है चीजें, वो उसके साथ तो रिलेट करते हैं? जी सर. क्या कहा नहीं सर, इमरान भाई? ठीक है. अब बस सर वो इतना ही, वो नहीं समझ लगी मुझे खुद भी ना. नहीं, ये जो लेबल्स है ना, आपने ये जो देखें ये लेबल उठाए हैं, ये वाले लेबल्स, ठीक है, ट्रेन लेबल्स यहाँ से उठाए हैं, ये MNS डॉट लोड डेटा से. अब ये जो लेबल है ना, ये 0101 ये उसमें नहीं है, ये है 0123456789 तक. जब आपको याद होगा पहले हम क्या करते थे, वन हॉट एनकोड करते हैं हर लेबल को. लेकिन उस केस में जब हम वन हॉट एनकोड कर देते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या आता है? कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है. लेकिन जब हमारे लेवल 0 1 2 3 से 9 तक हैं तो फिर हम करते हैं स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. ये फर्क है, ठीक. सही. ये इसके लेवल 0 से 9 तक है, यानी कि 0 और 1 हाँ, नहीं. ये जो इसके रॉ लेबल आए ना 0 से 9 तक, ठीक है. लेकिन हम जब कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करते हैं तो उसमें आपके पास वन हॉट एनकोडिंग करके आते हैं लेबल, और जब आपके पास रॉ लेबल आ रहे हैं ना, उसके अंदर स्पार्स कैटेगोरिकल यूज करते हैं, ठीक है. वो फिर आपको डायरेक्ट आउटपुट देता है, वो आपको प्रोबेबिलिटीज नहीं देता, वो डायरेक्ट आपको आउटपुट देता है. वो आपको 0 1 2 3 5 इसमें आउटपुट देगा यहाँ पे, इस तरीके से. तो उसके बाद ये फिट कर दिया, फिट करके द मॉडल क्विकली रीचेस द ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी ऑफ 30 to 40% रेंज बट कैन नॉट get past that. Let's try to lower the learning rate to more reasonable value. तो आप देखें 30 to 40% आई है इसकी सही एक्यूरेसी जब आप इसको चलाएंगे. अच्छा, अब हम बेस लाइन देखते हैं इसकी. ये ऊपर से बेस लाइन बताई थी इसकी यहाँ पे, ठीक है. ये for instance, if you are classifying images of digits and you starting from an array of sample where the sample are ordered by the class, ये बेसलाइन तो ये नहीं है ना, बेसलाइन किधर है? ये बेसलाइन. इसमें आपके पास जो एमएनएस्ट के अंदर जो है बेसलाइन जो है वो 10% थी, ठीक है. तो आपके जो मॉडल है इस वक्त 10% को क्रॉस कर गया है, ठीक है. ये बेसलाइन को क्रॉस कर गया. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त बेसलाइन 30-40% ये क्रॉस कर गया, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? लेट्स ट्राई टू
reduce the learning rate to a more reasonable value of 10 raised to power -2. तो ये आपका जब मॉडिफाई हो गया, ठीक है, लर्निंग रेट, तो इसमें आपने यहाँ ऊपर लर्निंग रेट क्या यूज किया, यहाँ पे लर्निंग रेट यहाँ होना है 1 यूज किया, सही। लेकिन अब जो है उसने क्या यूज किया, 1 × 10 raised to power -2, ठीक है। तो वो जो है आपका 0.001 ना आया, जी 0.01, सॉरी 0.01 आएगा, ठीक है। तो ये 0.01 यूज किया है। The model is now able to train. If you find yourself in similar situation, try lowering, increasing learning rate. आप इसको डिक्रीज इंक्रीज करेंगे learning rate को. A learning rate that is too high may lead to updates that vastly overshoot the proper fit, like in the preceding example, and a learning rate that is too low may make training so slow that it appears to stall. Increasing the batch size. A batch size with more samples will lead to gradients that are more informative and less noisy. तो बैच साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आपने ये काम करके फिर भी आपका जो है ना वो कम नहीं हो रहा, आपका जो लॉस है, ठीक है, या आपकी एक्यूरेसी कम नहीं हो रही, सॉरी एक्यूरेसी बड़ी नहीं है, 30-40 पे ही रही है, तो फिर आप ये फर्दर करें कि लर्निंग रेट को कम या ज़्यादा करें, दोबारा ट्राई करें, ठीक है। और दूसरी बात क्या करें, बैच साइज इंक्रीज कर दें, ठीक है, बैच साइज आपके डाटा का इंक्रीज कर दें, तो ये जो है आपका फिर आपका वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेसी वगैरह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, तो ये कोशिश करते हैं ये पढ़ लें। You have the model that fits, but for some reason your validation metrics aren't improving at all. They remain no better than what a random classifier would achieve. कहता है अगर आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं लेकिन उसका क्या है कि हो ये रहा है कि वो तो रैंडम क्लासिफायर से भी नीचे जा रहा है, यानी कि एक बेस लाइन से भी नीचे जा रहा है। योर मॉडल ट्रेन्स बट डज नॉट जनरलाइज। आपका मॉडल ट्रेनिंग तो कर रहा है लेकिन जनरलाइजेशन पावर नहीं है, क्योंकि वो ओवरफिटिंग की तरफ जा रही है, ठीक है। What's going on? This is perhaps the worst machine learning situation you can find yourself in. तो मतलब तो रैंडम क्लासिफायर को जब बीट नहीं कर सके तो आपका मतलब सिंपली सी बात है, रैंडम क्लासिफायर को ही बीट नहीं कर सके, बेस लाइन को ही बीट नहीं कर सके, तो आपका मॉडल वर्स्ट है, ठीक है। It indicates that something is fundamentally wrong with your approach and it may not be easy to tell what. Here are some tips. तो आपका अगर इस तरह का मसला हो रहा है कि आप बेस लाइन को ही नहीं कवर कर सकते, तो आप जो है कोई बहुत ही कंक्रीट किस्म के प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो उसने कहता है कि चेक कैसे करना है। फर्स्ट, it may be that input data you are using simply does not contain sufficient information to predict your targets. तो आपके पास जो है जो डेटा है उसके जो इंफॉर्मेशन है वो यानी कि इनफ नहीं है, ठीक है। The problem as formulated is not solvable. This is what happened earlier when we tried to fit MNIST model where the labels were shuffled. तो आपने जब लेबल शफल किए थे, ठीक है, तो लेबल शफल करके जब हमने किया था तो आपका क्या हुआ था, आपके लेबल्स ही सारे उल्ट पुल्ट हो गए थे सबके, ठीक है, सब इमेजेस के लेबल जो है ना सारे खराब हो गए थे। तो ये जो है वर्स्ट केस था। तो अच्छा टाइम सर खत्म हो गया है, तो इसको फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं इस जगह पे।
यहाँ से शुरू करेंगे, ये 5.3.2 से इंशाल्लाह।